آپ کو بتائیں ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ محمد پور گھوٹا اور موزہ بیلی میں سیلابی ریلا فلڈ بند سے ٹکرا گیا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب، جبکہ فصلوں اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ مکینوں نے کشتیوں کی مدد سے سامان کی منتقلی شروع کر دی ہے۔ ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ محمد پور گھوٹا موزہ بیلی میں پانی فلڈ تک پہنچ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر فصلیں اور باغات زیر آب آ گئے۔ اراضی زیر آب آنے پر دریائی علاقے کے رہائشیوں نے کشتیوں کی مدد سے سامان کی منتقلی شروع کر دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بارشوں سے بھی شدید نقصان پہنچا۔ یہ ایریا تو کافی بڑا ہے، پانی بڑھ ہی رہا ہے، آج رات زیادہ ہوا ہے۔ اندر لوگ وغیرہ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں باہر، کشتی کے ذریعے باہر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ مرالہ پر 74,510 کیوسک، جبکہ ہیڈ خانکی پر 94,317 کیوسک ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہیڈ قادر آباد پر 87,796 اور ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد 77,877 کیوسک ہے، جبکہ آج رات پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تقریباً موزہ محمد پور گھوٹا موزہ بیلی اور جوین شریف اس سارے علاقے جڑا ہے اس وقت زیر آب ہیں، تے ہر کوئی اپنی مدد آپ دے تحت باہر نکلدا پے یا جویں بھی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر 2,83,000 کیوسک پانی کی آمد ہے، جبکہ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کی آمد 20,611 کیوسک ہے۔ کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ میاں والی دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں اضافہ ہو گیا۔ چشمہ بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ جناب بیراج میں پانی کی آمد 1,74,112 کیوسک پر پہنچ گئی ہے۔ جناب بیراج میں پانی کا اخراج 1,71,112 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,88,892 کیوسک پر پہنچ گئی، جبکہ چشمہ بیراج میں پانی کا اخراج 2,81,396 کیوسک ہے۔ جناب بیراج میں پانی کی آمد نارمل چشمہ بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل فرحان اور پنجاب رینجرز ونگ کمانڈر کرنل کامران کا رجحان کا دورہ۔ پاک فوج کے افسران نے رجحان کے سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ ریسکیو 1122 نے لیفٹیننٹ کرنل فرحان اور رینجر ونگ کمانڈر کامران کو سیلاب کی بریفنگ دی۔ اس موقع پر پنجاب رینجر ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل فرحان کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں پاک فوج قوم کے ساتھ ہے۔ سیلاب متاثرین کی جتنی مدد ہو سکی پاک فوج کرے گی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئی۔ اب آپ کو بتائیں بہاولپور میں حالیہ برسنے والی بارشوں کے باعث 500 مقامات پر گڑھے پڑ گئے ہیں۔ گڑھے پڑنے سے سڑکیں بیٹھ گئی ہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محمود ظہیر مزید بتا رہے ہیں۔ جی، بہاولپور شہر بارشوں کے بعد کراؤن فیلئر کی زد میں ہے اور کراؤن فیلئر 5 ہوئے ہیں۔ بہاولپور کی 5 سڑکیں مین تک ٹوٹی ہیں اور ان پر بڑے گڑھے پڑے ہیں۔ اس حوالے سے میونسپل کارپوریشن کے سی او ہیں چیف آفیسر میاں اظہر صاحب، ان سے سر یہ 5 جو کراؤن فیلئر ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، 2 تو ہمارے میجر کراؤن فیلئر ہوئے ہیں، ایک جنرل بس سٹینڈ کے پاس اور ایک جو ہے وہ ہے بہاری کالونی کے پاس۔ وہاں پہ وہ پرانا ڈسپوزل ہمارا ہوتا تھا اس کے قریب، اس کا جو ہے نا وہ پبلک ہیلتھ کر رہی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ نیا پائپ ڈال کے تو کروانا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کوئی 1,55,00,000 کا انہوں نے ایسٹیمیٹ بنایا ہے، تو وہ پبلک ہیلتھ کو سے ہم ڈپازٹ وقت پہ کروا رہے ہیں۔ یہ جو ہے شہر والا، یہ بھی ہم چاہتے تھے کہ پبلک ہیلتھ کرے کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ شہر کا کام ہے اسی لیے انہوں نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا اور یہ ہم خود ریپیئر کر رہے ہیں۔ تو تیسرا ایک ہے ہمارا یزمان روڈ پہ، ایک رفیق قمر روڈ پہ رات ہوا ہے، ایک گلبرگ روڈ پہ ہوا ہے۔ یہ 5 ہمارے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ باقی تو چھوٹے ہیں، وہ ہم پائپ کا ڈایا جو ہے وہ مطلب کہیں 18 انچ ہے، کہیں 24 انچ ہے، لیکن جو مین یہ ہے یہ 54 انچ والے آپ کام کر رہے ہیں۔ میرا مین مقصد بات کرنے کا آپ سے یہ ہے، آپ کو میسج ہمارے روہی کے ذریعے عوام دیکھتی ہے، بہاولپور کے عوام سنتے ہیں، یہ میسج دیں کہ جہاں جہاں ہوئے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے ورک کر رہے ہیں، اور پہلے ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ کئی روز سے ورک کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کب تک ہو جائے گا ورک کر رہے ہیں یہ؟ انشاءاللہ امید ہے کہ آج اگر پانی ڈاؤن ہو گیا تو یہ شہر والا جو ایشو ہے نا وہ تو ریزالو ہو جائے گا۔ جو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بی وی ایچ کے سامنے پانی نکلتا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ شہر کا پانی آگے جانا بند ہوا ہے، سرکلر روڈ والا جو ہے۔ تو یہ اللہ کرے گا کہ 2 دن کے اندر امید ہے بارش نہ ہو اور 2 دن ہمیں مل جائے، تو رات کو ہم آپ کسی وقت آئیں نا، رات کے ٹائم ہم
1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काम होता है। उसके बाद पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, फिर काम खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। हम आवाम को बताना चाह रहे हैं रोही के तवस्सुत से कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और उसके अफसरान आप लोगों के लिए मुतहर्रिक हैं, रातों को उठकर काम कर रहे होते हैं ताकि जो ग्राउंड फेलियर हुए हैं बोसीदा सीवरेज लाइन की वजह से, जो कि बहावलपुर में 40 साल पुरानी बोसीदा सीवरेज लाइन्स हैं, वो फट जाती हैं, वो डूब जाती हैं, क्लैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से सड़कें बैठ जाती हैं। वहाँ पर काम जारी है। आपकी तकालीफ परेशानियों को दूर करने के लिए बहावलपुर म्यूनसिपल महमूद कॉर्पोरेशन सही, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम कोटे में कमी और चोकर की दूसरे सूबों को फरोख्त पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रहीम खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास सरपरस्त हाजी मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में हुआ। एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब वकास अकरम वड़ाइच और फ्लोर मिल्स मालकान शरीक हुए। इजलास में महकमा खुराक की जानिब से रहीम खान की फ्लोर मिल्स को गंदम कोटा कम देने पर और जानवरों की खुराक चोकर की सिंध और बलोचिस्तान को फराहमी पर पाबंदी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मसाइल ये है कि कोटा बहुत थोड़ा दे रहे हैं और सख्तियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। जितने 100 बोरी कोटा दे रहे हैं और आटा कह रहे हैं सारा जो बाहर जो प्राइवेट गंदम ले रहे हैं उसका आटा भी हमें दे दे। इस तरह के मामलात हैं। और दूसरा छोटे छोटे मामलात पे किसी को चलान हो रहा है, कोई जुर्माना हो रहा है, कोई बंद हो रही है। आज का फ्लोर मिल्स का एक हंगामी इजलास हुआ है जिसमें 2 से 3 मुतालबात रखे गए हैं फूड से। इसमें सबसे नंबर पहला जो मुतालबा रखा गया है वो तो ये कि हमें चोकर की फिलफोर फ्री इजाज़त दी जाए, हमें फ्री ट्रेड करने की इजाज़त दी जाए। और सेकंड, जिन मिल्स के पास गंदम स्टॉक मौजूद है उनको भी फ्री ट्रेड की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनको परमिट दिए जा रहे हैं, वो परमिट बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मरकजी तंजीम से राब्ता किया और इनको अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। मरकजी तंजीम ने रहीम खान की फ्लोर मिल्स के मसाइल 2 दिन में हल कराने का वादा किया। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में डीपीओ अख्तर फारूक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 2 हफ्तों में ही उस चीज़ को ग्रास्प कर लिया था। और हमारा एक कच्चे का बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर मेरा बहुत सारा टाइम लगा है, मेरा और मेरी टीम का। तो आपके पास पहले नहीं आ सके। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने इनवाइट किया। और ये इंशाल्लाह फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं आप भी हमारे पास आएंगे और हम भी आपके पास आते रहेंगे। अच्छा, चंद चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैं कैंडिड आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल दिल की बातें करूंगा। नंबर 1 ये है कि मेरी 3-4 सूबों में पोस्टिंग रह चुकी है, लेकिन यकीन करें जितना पॉजिटिव मीडिया का यहाँ पे आप सब लोगों ने पॉजिटिव, और अगर किसी ने कोई अपनी बात कन्वे भी की है तो वो मोर लाइक के मुझे इन्फॉर्म करने के हवाले से की है कि ये देखें ये खराबी चल रही है। और मैं समझता हूँ कि आप आइज़ एंड एयर्स हैं, आपकी हर जगह एक्सेस होती है, आप देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और मुझे वो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। और हमारी ये कोशिश होती है कि उस पर फिर एक्शन भी लें, ये जस्ट इग्नोर नहीं करें। और यहाँ पे जो बिलाल साहब ने जिस तरह बात की, मैं उसको नोट भी कर रहा हूँ, फील भी कर रहा हूँ। आपने दावा किया है और मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि वाक़या नहीं यहाँ के जो क्राइम रिपोर्टर हैं, बाकी हमारे दोस्त हैं, उनमें विजिबल डिफरेंस है। अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहतर हैं, कोऑपरेटिव हैं और ज़्यादा यूनिटी है प्रेस क्लब में, जो कि पुलिस के खिलाफ बात जाती है। आप डिवाइडेड होंगे तो हम ज़रा सुखी रहते हैं, तो लेकिन आप यूनाइटेड हैं, हम खुश हैं और आप सब दोस्तों के लिए दुआ गो करते हैं कि आप इस तरह इकट्ठे रहें। और शिकवे शिकायत तो रहने चाहिए, उससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आपके जो भी शिकवे शिकायत होंगे वो हम बिल्कुल, पिछले दिनों में कुछ दोस्त आए थे, हम अपनी PRO ब्रांच को मज़ीद मुतहर्रिक कर रहे हैं। हमें अंदाज़ा है कि आपको क्विकली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर लेट इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आई अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और वो फिर किसी काम की नहीं होती। हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि आपको इंफॉर्मेशन फौरी मिले और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जानबूझ के हम गलत बयानी नहीं करेंगे, ठीक है जी, जानबूझ के गलत बयानी नहीं करेंगे कि कोई इंसिडेंट कुछ हुआ है आपको कुछ बताएं, जो होगा वही बताएंगे और फिर आपकी मदद तलब करेंगे कि इसको हमने किस तरह प्रोजेक्ट करना है। हो सकता है कि प्रोजेक्शन से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कोई मामला ज़्यादा ख़राब ना हो तो वो हम आपको रिक्वेस्ट कर लेंगे, बट अदरवाइज़ आपके साथ बिल्कुल मेरिट की बात करेंगे।
जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं उनका कोई भी इशू होगा तो वो मेरा पर्सनल इशू होगा, इंशाल्लाह हम उसको प्रायोरिटी भी देखेंगे, आपका पर्सनल हो, आपके अजीज़ो कारब का हो, दोस्त का हो। मैंने अपने SHOs को भी मीटिंग करके यही बात की थी कि देखें अगर आप SHO का अगर कोई कुलीग उसको फ़ोन करता है कि यार इसमें हेल्प करो तो आप करते हो, तो आपको अगर कोई मीडिया का दोस्त फ़ोन करके कहता है तो उसकी हेल्प करने में क्या मज़ा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, हाई कोर्ट बार मुल्तान के अहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वकला के कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा अगर इन वाक़यात का सिलसिला बंद न हुआ तो आइंदा सख्त लाएअमल अपनाएंगे। लड़ाई में हम बीइंग कौंसल पेश होते हैं तो दूसरी पार्टीज अगर पर्सनल अगर हमसे हो जाती है, हम पे अटैक करती हैं, हुकूमत पंजाब के लिए हाई कोर्ट बार मुल्तान की जानिब से सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल अशरफ राही के कत्ल और मुल्तान में एडवोकेट सैयद मुदस्सर बुखारी पर कातिलाना हमला के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सदर हाई कोर्ट बार मियां आदिल मुश्ताक का कहना था कि इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा बार्स की मीटिंग हुई जिसमें वकला प्रोटेक्शन एक्ट के नफाज के लिए मिलकर लेटर लिखे गए। हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि वकला तहफ़्फ़ुज़ का बिल फौरी मंजूर किया जाए। वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको फिलफौर असेंबली से पास करवा के नाफिज अमल किया जाए ताकि हर वकील की जानो माल जो है उसको यकीनी बनाया जाए, मगर अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। बार अहदेदारान का कहना था कि वकला के कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात के तो अपना अगला लाए अमल अपनाएंगे। उन्होंने एडिशनल IG जनूबी पंजाब से मुतालबा किया कि एडवोकेट मुदस्सर बुखारी पर हमला करने वाले मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ऐसे तमाम जो वाक़यात हुए हैं और स्पेसिफिकली ये दो हाल ही में एक दिन में जो वक़ुआत हुए हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और अरबाब इख्तियार से मुतालबा करती है कि फिलफौर जनाब सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल अशरफ राही साहब के कातलों को भी गिरफ्तार किया जाए। मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना तुफैल नून ने कहा कि अशरफ राही इंतहाई शरीफ इंसान थे। 40 साल से वो खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अशरफ राही को टारगेट किलिंग का निशान बना दिया गया। पंजाब भर में जहां वकला पर जुल्म हुआ उन्होंने हमेशा मजम्मत की। ये हमारा जो वकला का प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने भेजा है, जैसे मियां साहब फरमा रहे थे, पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो प्रोग्राम अरेंज किया था उसमें तमाम हाई कोर्ट बार तो मियां साहब ने वहाँ मौसर अंदाज में हमारी नुमाइंदगी की। इस मौका पर बार के दीगर अहदेदारान और वकला भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरहूम अशरफ राही के साले सवाब के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन सफीर के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। अब आपको बताएं, RPO मुल्तान रिफत मुख्तार राजा की जानिब से अर्दल रूम का इनेकाद किया गया। लोधरा के इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल की इंक्रीमेंट रोकने की अपील मुस्तरद कर दी गई। लोधरा के ASI मकसूद अहमद की सर्विस जब्तगी की अपील पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। ASI अजहर हुसैन की 3 साल की अपील पर DSP मखदूम रशीद को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इसी तरह सीनियर क्लर्क मोहम्मद सफदर कुरैशी, मोहम्मद मकसूद, क्लर्क मोहम्मद इजाज और जूनियर क्लर्क इम्तियाज अहमद को संशोर की सजा सुना दी गई। चौक सरवर शहीद में चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर शहर में जश्न का समा है। कारकुनान की जानिब से रैलियां और मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। चौधरी उमर फारूक से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से जो है वो चौक सरवर शहीद में रैलियां निकाली जा रही हैं। साथ साथ जो है वो जश्न का सा समा है और इसके साथ जो है वो ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है और मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो तारीख साल फैसला है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। देखिए जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के विजन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, जमहूरियत की फतह है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब ने KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की तरह दीगर पूरे पाकिस्तान की तरह PTI ने साबित किया है कि PTI एक वफाकी जमात है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साहब हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर पूरी PTI बहुत खुश है। इस बार जमहूरियत की जीत हुई है, अवाम की जीत हुई है, हक की जीत हुई है। इमरान खान की कॉल पे आज पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है। आज हम अपनी तहसील चौक सरवर शहीद में जश्न का समा मना रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि अदलिया की तरफ से
जमहूरियत की जीत हुई है। थैंक यू। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है काफी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं और जमहूरियत की जीत हुई है, इसके साथ साथ जो है जश्न का समा भी है। जी हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार दिया था। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। परवेज इलाही अब सूबे के नए वजीर आला बन गए हैं। चौधरी परवेज इलाही के हवाले से आवाम का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कल अदम करार दे दिया। हमजा शहबाज को वजीर आला के ओहदे से हटा दिया गया और अब पंजाब के नए वजीर आला बने हैं चौधरी परवेज इलाही। अवाम ने चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की है। परवेज इलाही पहले भी वजीर आला रह चुके हैं, हम उनको अब भी खैर मुकदम कहते हैं कि अच्छा है वो रहे। पहले भी उन्होंने अपने दौर में पहले रेस्क्यू 1122 कार्डियोलॉजी की तरह बहुत काम किए। चौधरी परवेज इलाही एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है और इंशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस भी है इसके अंदर और बड़ी उम्मीद करते हैं कि उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अवाम नए वजीर आला की गुज़िश्ता कारकर्दगी से काफी मुतमईन नजर आती है। लोग पुरुम्मीद हैं कि अब भी वो अवाम के लिए आसानियां पैदा करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। अच्छा ये वजीर आला बने हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में काम करें। पहले बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, 11-22 वगैरह, इससे तालीम फ्री के लिए इन्होंने काफी काम किए। परवेज इलाही साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद ये रखता हूँ कि इस पाकिस्तान से है ना बेरोजगारी और ये जो करप्शन है ये खत्म हो और सबसे महंगाई के पर जितना हो सके कंट्रोल करें। शहरियों का कहना है कि जो भी इस ओहदा पर आए वो सिर्फ अवाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे और इस बढ़ती महंगाई को काबू में लाए। अवाम का एक ही मुतालबा है, वजीर आला परवेज इलाही हो या फिर कोई और हो, अवाम को आसानी दी जाए, महंगाई कम की जाए और सूबे की तरक्की के लिए काम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने के बाद जश्न का समा है। मुस्लिम लीग काफ के वर्कर्स ने परवेज इलाही से जनूबी पंजाब के लिए तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। ज़िला सदर मुस्लिम लीग काफ डॉक्टर खालिद हाकवानी की रोही से गुफ्तगू, क्या कहना है उनका, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस के फैसले के बाद परवेज इलाही जो है वो वजीर आला पंजाब जो है वो बन चुके हैं और अगर बात करते चलें दिन भर जो जश्न का समा है वो जारी रहा। डॉक्टर खालिद खाकवानी जो है ज़िला सदर है मुस्लिम लीग काफ मुल्तान के, इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। क्या कहेंगे, दोबारा से जो है वो इक़्तिदार मिला है, एक भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद की गई है परवेज इलाही पर, क्या समझते हैं कि वो उनको उस तरीके से निभा पाएंगे और मुल्तान के हवाले से इसमें क्या बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शामिल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आलाशिप बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है और उसका इनाम हमें चौधरी परवेज इलाही की सूरत में पंजाब के वज़ीर आला तौर पर मिला है। इसके अलावा देखें जी, बात यह है कि चौधरी साहब का यहाँ मुल्तान और गिरद नवाह में जनूबी पंजाब के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि बर्न यूनिट 1122 और सबसे बड़ी चीज़ कार्डियोलॉजी सेंटर का क़याम, ये उनके पुराने दौर की बातें हैं जो उन्होंने किया और आज तक लोग उनको बड़ी अच्छे तरीके से याद भी करते हैं और दिल में भी रखा हुआ है। ये जनूबी पंजाब के लोग उनसे दिलों मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, ज़िली सदर मुस्लिम लीग काफ इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे जिनके इस हवाले से ये कहना है कि हेल्थ और एजुकेशन को अगर फोकस किया जाए तो जो जनूबी पंजाब के देरीना मसाइल हैं वो इसके साथ जुड़े हैं जिनको हल किया जा सकता है और वो उम्मीद करते हैं कि परवेज इलाही जो है वो इन मसलों को ज़रूर देखकर। वसीम शहजाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत कपास के हवाले से मुल्तान में इजलास का मकसद मौजूदा सूरत हाल में कपास की फसल के मुतालिक हिकमत अमली तैयार करना था। एडिशनल सेक्रेटरीज इम्तियाज़ अहमद वड़ाइज समेत महकमा ज़राअत के दीगर अफसरान की इजलास में शिरकत। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि अगस्त का महीना कपास की निगहदाश्त के लिहाज से बहुत अहम है। फसल पर फल उठाने के अमल के दौरान नमी बढ़ने से नुकसानदा कीड़ों के हमले का खदशा है। बारिशों के मौसम में कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए काश्तकारों की रहनुमाई की जाए। सेनेटर राना महमूदुल हसन का मैदे का कामयाब ऑपरेशन। राना महमूदुल हसन घर मुंतकिल हो गए। लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की। लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह की राना महमूदुल हसन से मुलाकात में लीगी रहनुमा राना नईम, रिजवान याकूब अंसारी भी मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने राना महमूदुल हसन की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की।
CTO मुल्तान जलील इमरान की लाइसेंसदारों से मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के लिए ट्रैफिक प्लान पर तबादला ख्याल। लाइसेंसदारान ने मजालिस और जुलूस के लिए ट्रैफिक के मसाइल बताए। CTO की जानिब से ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई गई। मुख्तलिफ सर्कल्स के इंचार्ज भी मीटिंग में शामिल थे। इस मौके पर CTO मुल्तान जलील इमरान का कहना था कि जुलूसों और मजालिस के लिए पार्किंग एरिया मुख्तस किए जाएंगे। DPO बहावलनगर फैसल गुलजार की मेंबरान ज़िलाई अमन कमेटी और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मीटिंग में मेंबरान ज़िलाई अमन कमेटी और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर DPO फैसल गुलजार का कहना था बाहमी मजहबी हमआहंगी और एक दूसरे के एहतराम से ही माशरे में अमन का क़याम मुमकिन है। मुहर्रम उल हराम में मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। अब आपको बताएं, मुल्तान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स खसूसन टेबल टेनिस का खेल जारी है, जहां प्लेयर्स का प्रैक्टिस सेशन भी जारी है। प्रैक्टिस सेशन का अहवाल जानते हैं दानियाल इकबाल से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जहां इंडोर गेम्स का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हमारे साथ एक टेबल टेनिस प्लेयर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम शुमाइला जुवैद है, मैं टेबल टेनिस की प्लेयर हूँ। हम यहाँ मुल्तान जिम्नेजियम में टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत से प्लेयर्स आते हैं जो टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे पंजाब गेम्स आने वाले कुछ दिनों में होने वाली थी, लेकिन मगर वो पोस्टपोन हो चुकी हैं, तो जिनकी हम लोग तैयारी कर रहे थे, लिहाजा हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो पंजाब गेम्स हैं आने वाले कुछ टाइम जो इन्होंने डेट्स दी हैं उन्हीं में हो जाए सितंबर तक होपफुली। अगर वो नहीं होती हैं तो हम लोग तो मेहनत करते जा रहे हैं और मेहनत का फल कभी भी रायगा नहीं जाता, सबको मेहनत का फल लाजमी मिलता है। हम लोग लास्ट टाइम पंजाब गेम्स में स्टैंडिंग पोजीशन में आए थे, काज़ी-आज़म गेम्स में भी स्टैंडिंग पोजीशन में आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटी से बतौर मेडलिस्ट और एक्सेट्रा। यहाँ पे मुल्तान बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स मुल्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो बहुत से पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है जो घर में इस वक्त देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, तो वो काइंडली अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालें, डिजिटल गेम्स से निकालें और फिजिकल गेम्स की तरफ लेकर आएँ ताकि उनके बच्चे मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हो जाएं। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना टेबल टेनिस प्लेयर्स का यही कहना है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बाहर निकालें ताकि उनके जो बच्चों में छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। दानियाल इकबाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब लिया में डायमंड जुबली जश्न आज़ादी टूर्नामेंट ज़ेनिथ फुटबॉल क्लब ने पेनल्टी किक्स पर चिटान क्लब से फाइनल मैच जीत लिया है। जाहिद सरफराज मजीद बता रहे हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर के हवाले से अगर बात की तो डायमंड जुबली स्पोर्ट्स मुकाबले जारी हैं। आज भी स्पोर्ट्स के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर फुटबॉल के फाइनल मैच का इनेकाद हो, जिसके अंदर ज़ेनिथ फुटबॉल क्लब ने अल-फतह फुटबॉल क्लब को पेनल्टी किक्स पर यहाँ पर जो है उनको शिकस्त दी है। इस मैच के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर FNP मलिक मौसमी और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इम्तियाज भट्टी थे। मलिक समी सबसे बात करें। मलिक साहब, सराय की अजरक भी पहनी हुई, कैसा देखा सर आज का मैच? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सराय की अजरक जो है ना, ये इस वसेब का एक तोहफ़ा है, पहचान है और मेरा ताल्लुक़ भी इस सराय की इलाके से ही है। तो बहुत अच्छा लगा आज के इस मैच में और इंतज़ामिया के और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर्स और उनकी पूरी टीम की जितनी एफर्ट्स थी और खूबसूरत जो मैच हुआ यहाँ दोनों टीमों का देखने का आया। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मैच खेला। हार जीत ये होती रहती है। बहरहाल मैं दोनों टीमों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ जो लिया में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने में आया है और देखने वालों में भी, और कुछ बुजुर्ग यहाँ आए हैं जो यहाँ के बानी हैं फुटबॉल के, और ये चीज़ भी सुन के कि यहाँ से 36 क्लब डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के हैं, फुटबॉल के हैं, तो इससे महसूस होता है कि यहाँ कितनी अच्छी ज़हनियत के लोग हैं, कितने अच्छे नौजवान और कितने इनकी अच्छी अप्रोच है। बहुत ही दिली खुशी हुई। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे ही मैच देखने में आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जो सराह है टीमों को, भट्टी साहब कैसा रहा टूर्नामेंट सर? जी बिल्कुल, ये डायमंड जुबली के सिलसिले में एक इवेंट किया गया और ये बहुत अच्छा कामयाब रहा। हमारा फुटबॉल की बहुत सारी टीमों ने हिस्सा लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइनल करवाया है डायमंड जुबली के सिलसिले में। तो एक टीम की जीत और एक की हार होती है, मैचेस जब होते हैं तो ऐसे लम्हात देखने पड़ते हैं। तो मैं गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को सराहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें देखें बुजुर्ग और बच्चे और जवान सारे इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। सारे ग्राउंड में मौजूद हैं, जीतने वाली टीम भी है। भाई कैसा लगा जीत कर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है सर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी इम्तियाज़ अहमद भट्टी साहब का, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है और
साथ आरिफ भट्टी साहब, मेहमान डिस्ट्रिक्ट अपना डिप्टी कमिश्नर साहब और जो साथ मेरे हैं सारे। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो पूरी टीम है इंतहाई पुरजोश और खुश थी कि जो सबका यही कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट से यकीनन उनकी सलाहियत खुलकर सामने आती है। और आज जो है डायमंड जुबली स्पोर्ट्स मुकाबले जो थे उनके उसमें फुटबॉल का जो मैच है वो टूर्नामेंट था वो इख्तिताम को पहुंचा और जैन फुटबॉल क्लब ने ये टूर्नामेंट अपने जाहिद सरफराज, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।